السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ بسائڈ سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ ان کمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، crafted just for you، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حیدرآباد دنیا کے لیے فیوچر سٹی، مصنوعی ذہانت پر 2 روزہ عالمی کانفرنس۔ ٹیکنالوجی انسانی ترقی میں معاون، وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ سیلاب سے متاثر ہونے والے ذخائر آب کی مرمت کے ٹینڈرز طلب کریں۔ نقصانات کی تفصیلات فراہم کرنے کی وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی کی عہدیداروں کو ہدایت۔ سرکاری تعلیمی اداروں کو مفت برقی سربراہ کی جائے گی، اخراجات محکمہ برقی برداشت کرے گا، احکامات جاری۔ تلنگانہ بھدادری کوتگوڑم میں انکاؤنٹر، 6 ماویسٹ ہلاک، ہتھیار اور گولہ بارود ضبط، 2 سیکورٹی ملازمین زخمی۔ راشن کے چاول کی غیر قانونی منتقلی کا ریکٹ بے نقاب، 4 کنٹل چاول ضبط۔ ملاوٹی شراب کے لیے استعمال ہونے والا کالا گڑ پکڑا گیا، 2 افراد گرفتار۔ اور ڈکیتی کی واردات میں ملوث 5 افراد گرفتار، 48 لاکھ روپے کے مسروقہ اشیاء بشمول نقد رقم ضبط۔ سٹے کا کاروبار کرنے والی ٹولی بے نقاب، 8 افراد گرفتار۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت پر 2 روزہ عالمی چوٹی کانفرنس کا حیدرآباد میں آغاز ہوا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اس کانفرنس کے مہمان خصوصی تھے۔ 2000 سے زائد عالمی مندوبین کی موجودگی میں وزیر اعلیٰ نے اس کانفرنس کا افتتاح انجام دیا۔
अपने खिताब में उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और ईजादात हर दौर में इंसानी जिंदगियों को सहूलतें राहतें पहुंचाते रहे हैं। उन्होंने 19वीं सदी के सनती इनकलाब के बाद दुनिया में होने वाली तरक्कियों बिलखुसूस इल्म व टेक्नोलॉजी में इख्तिराई पहलुओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की नई जिद्दत मसनूई जहानत है। हैदराबाद मुल्क में इसका पहला हब होगा जहां एक AI सिटी को कायम किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि जब कोई टेक्नोलॉजी मुतारिफ होती है तो कुछ अंदेशे और खदशात भी पैदा होते हैं, लेकिन ये देखा गया कि टेक्नोलॉजी इंसानी जिंदगी के इर्तिक़ा में मुआविन हो रही है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मसनूई जहानत को फ़रोग़ देने वज़ीर आला ने एक दस्तावेज़ जारी की जिसमें 25 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की निशानदही की गई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में एक फ्यूचर सिटी की बुनियाद डाली जा रही है। ये फ्यूचर सिटी सारी दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी का एक मरकज साबित होगा। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी श्रीधर बाबू, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयेश रंजन, दुनिया भर से आए कॉरपोरेट इदारों के नुमाइंदे और वफूद इस तकरीब में शरीक थे। We have already taken big steps for AI. We want to lay a strong foundation for our future. Telangana AI Mission or TAIM in partnership with NASSCOM will help us implement AI framework in Telangana. We will continue to bring government and industry experts together to drive innovation. The AI Summit today in Hyderabad is our declaration. We are ready for AI. We will create AI's future and set standards. I welcome all of you to the city of the future. Let us all come together and script a great new future. Thank you. Welcome to Telangana, where tradition meets innovation as we spearhead India's AI revolution. From historical landmarks to cutting-edge technology hubs, our state perfectly blends heritage with progress. With India's ascent at the global stage, Telangana has emerged as a tech powerhouse. Leveraging our existing IT ecosystem, we aim to transform Hyderabad into a leading global hub for deep tech innovations and products. Our AI landscape has emerged as a major catalyst for growth. With vast data resources, a talented workforce, and a vibrant startup ecosystem, social good, such as the Mitra app to curb narcotics, which leverages AI for enhanced early detection of drug use. iRaste, an AI-powered transportation initiative that secured the Gartner Innovation Award, has led to a 40% reduction in road accidents. AI-enabled wildlife monitoring for improved conservation of biodiversity. वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में झील और कैनाल में शगाफ की मरम्मत का काम के लिए टेंडर्स एक हफ्ते में तलब किए जाएंगे। इरम मंजिल में जलसोदा में सैलाब से होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जुमेरात की शाम तक टेंडर्स तलब करने के लिए सरकारी तौर पर मंजूरी हासिल करें। मंजूरी हासिल करते ही फौरन गाइडलाइन पर अमल करते हुए जुमा की सुबह से ऑनलाइन टेंडर्स को अपलोड करें। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सैलाब में जो नुकसानात हुए हैं उसका तखमीना फौरन हुकूमत को रवाना करें।
शदीद बारिश और सैलाब की वक्त मुतहरिक रहने पर आबपाशी के अमले की सताइश की। उन्होंने कहा कि जमीनी सतह पर दौरे के दौरान बाज़ हक़ाइक़ सामने आए हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रेगुलेटर शटर काम कर रहे हैं या नहीं, इसका जायजा नहीं लिया गया है। एक जगह पर रेगुलेटर मुकम्मल जाम था, एक जगह पर शटर उठा हुआ था, जिसकी वजह से वो टूट गया है। अगर इस तरह की गलती दोबारा होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह गलती दोबारा होने पर CEL ही जिम्मेदार होंगे। हुकूमत ने तमाम सरकारी तालीमी इदारों को मुफ्त बरक़ी सरबराही का ऐलान किया है। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया है। सरकारी तालीमी इदारों में मियार तालीम को फ़रोग़ देने के मकसद से मुफ्त बरक़ी सरबराही स्कीम शुरू की जा रही है। बरक़ी सरबराह करने वाले कंपनियों डिस्काम्स से कहा गया है कि उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल कायम करें। सरकारी तालीमी इदारों के मुख्तलिफ महकमेजात को इस पोर्टल का हिस्सा बनाएं। मुख्तलिफ महकमेजात के सेक्रेटरीज अपने दायरे इख्तियार में आने वाले तालीमी इदारों की फहरिस्त को खतियत दें और ऑनलाइन के जरिए पोर्टल में उनके नामों को शामिल करें। हर तालीमी इदारे का माहाना बिल तैयार किया जाएगा और मुतल्लिका महकमे के लॉगइन पर उसको नुमायां किया जाएगा। मुतल्लिका तालीमी इदारे के जिम्मेदार को इसकी हार्ड कॉपी दी जाएगी। कितनी बरक़ी का इस्तेमाल किया गया है, इसका कितना बिल होता है, माजी में कितना बिल होता रहा है और अब कितना है, इसकी तमाम तफसीलात दी जाएंगी। महकमे फाइनेंस को ये तमाम बिल्स पोर्टल के जरिए भेजे जाएंगे ताकि उसकी अदायगी हो सके। यह हुक्मनामा महकमे फाइनेंस की रजामंदी से जारी किया गया है। सरकारी तालीमी इदारों को बरक़ी की मुफ्त सरबराही के लिए मुतल्लिका महकमेजात कदोकाल भी जारी करेंगे। किसानों को बरक़ी की मुफ्त सरबराही, समाज के कमजोर तबकात को माहाना 200 यूनिट बरक़ी की मुफ्त सरबराही के बाद तालीमी इदारों को बरक़ी की मुफ्त सरबराही का ऐलान किया गया है। हालिया गणेश त्यौहार के लिए भी तमाम गणेश मंडपों को भी बरक़ी की मुफ्त सरबराही की जा रही है। MBBS के दाखिलों के लिए हुकूमत ने जो GO 33 जारी किया है, इसको हाई कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया है। जुमेरात के दिन मुकामी तलबा को लेकर हुकूमत ने जो GO जारी किया था, इसके खिलाफ जो दरख्वास्त दाखिल की गई, इस पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने हुकूमत को राहत देते हुए कहा कि जारी किया गया GO दुरुस्त है। हाई कोर्ट ने MBBS दाखिलों से मुतालिक GO 33 को बरकरार रखा। अर्जी गुजारों की दरख्वास्तों पर उनके इलाके का पता लगाने के बाद ही गौर करने की तजवीज़ दी है और ये जांचने का मशवरा दिया कि आया वो तलबा तेलंगाना के मुस्तकिल बाशिंदे हैं या नहीं, चूंकि इसके लिए फिलहाल कोई रहनुमायाना खतूत मौजूद नहीं है। हाई कोर्ट ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो नए रहनुमायाना खतूत वज़ा करे। हाई कोर्ट ने कॉलेजी यूनिवर्सिटी को इन हिदायत पर अमल करने का हुक्म दिया है। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि इन रहनुमायाना खतूत के मुताबिक सिर्फ अहल तलबा की दरख्वास्तों पर गौर किया जाए। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि वोटर लिस्ट की नजरसानी का प्रोग्राम 20 अगस्त से शुरू हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 4 महीनों तक यह प्रोग्राम जारी रहेगा। 18 साल मुकम्मल करने वाले और 1 जनवरी तक 18 साल मुकम्मल करने वाले अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। voter.eci.gov.in या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल पर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपना नाम दर्ज करवाने के लिए साल में 4 तारीखें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर तक नजरसानी प्रोग्राम जारी रहेगा। सुदर्शन ने कहा कि 119 असेंबली हलकों के 119 ERO मौजूद रहेंगे। BLO घर घर जाकर नजरसानी करेंगे। 35,000 BLO खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बूथ लेवल ऑफिसर ही मुताल्लिका वार्ड का होता है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए फर्जी वोटर्स को हज़फ कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वोटर्स कार्ड को आधार कार्ड से 60% मरबूत कर दिया गया है। Special summary revision program has started from August 20th. This program will go on for till January 1st. This is divided into pre-revision and final revision. Pre-revision of the electoral roll will consist of house-to-house verification. This house-to-house verification will go on for 2 months. During house-to-house verification, BLOs, booth level officers, will be visiting each house and taking the details and checking the if there is need for any corrections or for any modifications or for new enrollment of voters. All these activities will be taken up at the level of the BLO, who will in turn bring all this information to the ERO, electoral registration officer, who compiles it and brings it to the collector. By the end of say October 28th, this pre-revision activities will be completed.
After that, final revision will be taken up from October 29th, during which time, if people have any objections or any further claims to submit or any other things they have, they can put it before the ERO, who will take out the correction and help in publishing the final electoral roll. Final electoral roll will be finally published on 1st, which will be released on 6th of next year. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से एसबीआई के नुमाइंदों ने जुबली हिल्स में उनके क़यामगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का, एसबीआई के सीजीएम राजेश कुमार, डीजीएम जितेंद्र शर्मा, एमजीएम दुर्गा प्रसाद ने सैलाब से मुतासर अफराद के लिए तेलंगाना के एसबीआई के मुलाजिमीन की एक रोज की तनख्वाह 5 करोड़ रुपए का अतिया सीएम रिलीफ में दिया। उन्होंने वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला को अतिये का चेक हवाले किया। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने सिद्दीपेट कैंप ऑफिस से खम्मम के सैलाब मुतासरीन के लिए जरूरी अशिया रवाना की हैं। जरूरी अशिया से लदी हुई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खम्मम और महबूबाबाद में सैलाब से काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अवाम की मदद करने में हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। रियासत में अवामी हुकूमत नहीं, शैतानी हुकूमत चल रही है। अगर हुकूमत पहले ही बेदार हो जाती तो इतनी जानों का नुकसान नहीं होता। हम जो काम कर रहे हैं इसको देखकर हम पर हमला कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि जिनके मकान पूरी तरह डूब चुके हैं उनको 2 लाख रुपए दिए जाएं। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से सैलाब से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुभान असली हीरो है जिसने 9 अफराद की जान बचाई है। तीनों वज़रा सिफर साबित हो गए हैं। कम से कम सुभान को काबीना में शामिल करें तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत में टीम वर्क नहीं है। इंतखाबात के वक्त 4-5 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन सैलाब के वक्त एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस हुकूमत के पास दूरअंदेशी नहीं है, खुद तो काम बराबर नहीं कर रहे हैं, वजीर आजम का इंतजार कर रहे हैं। रियासत में 18 लाख एकड़ आराजी की फसलों का नुकसान हुआ है। हुकूमत की तरफ अभी तक नुकसानात का कोई ऐलान नहीं किया गया है। अपोजिशन को निशाना बनाने के लिए वज़रा को मुकर्रर किया है। मुतासरीन और फसलों के नुकसानात से किसानों की मदद करने के लिए हुकूमत इक़दामात करे। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली केपी विवेकानंदा ने कहा कि हैदराबाद आउटर रिंग रोड के 51 ग्राम पंचायत को मज़ाफ़ात के बलदियात में ज़म करने का हुकूमत ने फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने यह फैसला लेने से पहले किसी से मशवरा तक नहीं किया है। इतनी जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया है? रेवंत रेड्डी के इस तरह के फैसले से हैदराबाद के वक़ार को नुकसान पहुंच सकता है। विवेक ने कहा कि कम से कम कुल जमाती इजलास भी तलब नहीं किया गया। हाइड्रा के नाम पर रकम वसूल की जा रही है, जबकि निदामी कार्रवाई के लिए रहनुमाना खतूत नहीं है। वजीर आला के फैसले से रियल एस्टेट का कारोबार ठप हो चुका है। उन्होंने कहा कि वजीर आला को हुकूमत का तजुर्बा नहीं है, इसलिए अवाम परेशान है। कांग्रेस को वक्त पर बलदिया के इंतखाबात करवाने की आदत नहीं है। तेलंगाना बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जी नागेश ने कहा कि जेनूर में गिरिजन खातून के वाक़े की हुकूमत पर्दापोशी करने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुतासरा के घर वालों का कहना है कि उसकी इस्मतदरी और कत्ल करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिमीन को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हुकूमत मुतासरा के खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आदिवासियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा न मिलने की वजह से ऐसे वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं। वजीर सीताक्का को माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका कहना है कि खातून के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। और नाज़रीन, वक्फे के बाद भी जारी रहेगा खबरनामे का ये सिलसिला। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने दारुस्सलाम में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की इस स्कीम से 30 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया, जिसकी जुमला मालियत 14,55,000 रुपए बताई जाती है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन से इज़हार तशक्कुर किया है। तेलंगाना डिजिटल मीडिया के साबिक डायरेक्टर के दिलीप को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने पर बीआरएस पार्टी के कायदीन ने शदीद मजम्मत की। केटीआर और हरीश राव ने ट्विटर के जरिए मजम्मत की, जबकि साबिक वजीर और रुकन असम्बली जगदीश्वर रेड्डी और दीगर कायदीन ने सीसीएस के दफ्तर पहुंचकर के दिलीप को रिहा करने का मुतालबा किया।
बीआरएस पार्टी के कायदीन ने कहा कि दिलीप के सवालात रेवंत रेड्डी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। चंद दिन कबल ही झूठे मुकदमात लगाकर दिलीप को मुश्किलात में डालने की कोशिश की गई थी। हाईकोर्ट की सरजनिश के बाद भी उनको अकल नहीं आई। दिलीप का गला घोंटने के लिए फिर एक बार गैर कानूनी मुकदमा लगाकर हिरासत में लिया गया है। किसी तल्ला के बगैर गिरफ्तार किया गया है। हल्के मलकपेट में माजूरीन के सेंसर पार्क के सिलसिले में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुख्तलिफ महकमा जात के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। रुकन असम्बली ने माजूरीन के सेंसर पार्क से मुताल्लिक अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी और इस सिलसिले में इक़दामात पर जोर दिया। इस मौके पर आयशा रुबीना, नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा जीएचएमसी जोनल कमिश्नर और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। पंजागुट्टा फ्लाईओवर के नीचे चहारशुंबे की रात अचानक फव्वारा फूट पड़ा। बताया गया कि पानी की पाइपलाइन के फटने से फव्वारे की शक्ल में पानी बहने लगा। मुकामी अवाम की तरफ से मुतल्लिका हुक्काम को इस बात की इत्तला दी गई। तेलंगाना के भदादरी कोत्तागुडम में हुए इनकाउंटर में 6 नक्सलाइट्स हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक अहम माविस्ट कंजवीरैया उर्फ लचन्ना, उसकी अहलिया पूनम लाके उर्फ तुलसी के अलावा कावासी रामू, शकराम, सोदिकासी जैसे माविस्ट भी महलूकीन में शामिल हैं। महलूक माविस्टों के पास से एक AK-47 के अलावा दूसरे हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए। बताया गया है कि लचन्ना छत्तीसगढ़ से मनगुड़ू के इलाके में मुंतकिल हुआ था और यहाँ कुछ दिन से उसकी सरगर्मियां जारी थीं। ग्रेहाउंड्स की निगरानी में यह एनकाउंटर हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। इस एनकाउंटर में 2 सिक्योरिटी जवानों के जख्मी होने की भी इत्तला है। रचाकुंडा पुलिस ने 2 करोड़ रुपए मालियती मसरूका मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने जायदस 590 मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं। मस्कुरा मोबाइल फोन्स में 339 मोबाइल फोन्स एलबी नगर के हैं, जबकि 103 और 149 फोन्स बितरतीब धोनगीर और मलकाजगिरी पुलिस हुदूद के हैं। मसरूका फोन्स का हुसूल CEIR पोर्टल के जरिए किया गया है। इस तरह इस साल रचाकुंडा पुलिस ने मस्कुरा पोर्टल के से 3213 फोन्स बरामद किए हैं, जिसे रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर ने मोबाइल फोन्स के मालिकों के हवाले कर दिया है। अतापुर पुलिस ने राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकिली के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने सुलेमान नगर में गोदाम पर धावा करते हुए 4 कुंटल राशन के चावल जब्त किए हैं। पुलिस ने नवाज और इमरान को गिरफ्तार किया है। जराये के मुताबिक हसन नगर के इलाके में राशन के चावल की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी और फरोख्त के रैकेट चलाए जा रहे हैं। पुलिस ने चावल के स्मगलर्स को इंतबाह दिया है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोवा से गैरकानूनी तौर पर लाई जाने वाली शराब को आबकारी पुलिस ने जब्त कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक एक्साइज इन्फोर्समेंट डायरेक्टर VB कमलासन रेड्डी और DC रंगारेड्डी दशरथ की निगरानी में शमशाबाद एयरपोर्ट पर इस शराब को जब्त किया गया। कस्टम ड्यूटी अदा किए बगैर 415 बोतलें लाई गई थीं। इसकी मालियत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। 12 अफराद के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। हैदराबाद आरामगढ़ चौराहे के पास गुज़िश्ता रात बारिश के दौरान खानगी ट्रैवल्स की बस बेकाबू होकर उलट गई और RTC बस से टकरा गई। हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस वाक़े में सवार बाज मुसाफरीन के जख्मी होने की इत्तलात हैं। मुकामी अफराद की मदद से जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने इंस्पेक्टर रघुवेंद्रा की क़यादत में सट्टा चलाने वाली टोली को बेनकाब किया है। बताया गया है कि ये टोली छोटे ताजिरों और मासूम लोगों को ज्यादा रकम का लालच देकर सट्टेबाजी की तरफ रागिब कर रही थी। पुलिस ने टोली के कब्जे से 76,000 रुपए की रकम और 4 सेल फोन जब्त किए हैं। हुसैनी आलम के साकिन मुस्तफ़ा ने समीर, जफर, शेख उमर और अजीम के साथ मिलकर टोली बनाई और सट्टेबाजी की बेटिंग वसूल करने लगा। सट्टा मटका नामी वेबसाइट के जरिए छोटे ताजरीन, ऑटो ड्राइवर और पान के डब्बे चलाने वालों को सट्टेबाजी के लिए तरगीब दी जा रही थी। इत्तला मिलने पर इंस्पेक्टर राघवेंद्रा ने अपनी टीम के साथ घर पर धावा किया और टोली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान को हुसैनी आलम पुलिस के हवाले कर दिया गया है। टास्क फोर्स साउथ वेस्ट टीम ने सनसनीखेज अंदाज में डकैती की वारदात अंजाम देने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार करके जायद 48 लाख रुपए मालियती मुख्तलिफ अशिया और नकद रकम
बरामद कर ली। टास्क फोर्स साउथ वेस्ट ने मीडिया को बताया कि उसने गुडिमल कपूर पुलिस के ताउन से कार्रवाई करके सरदार हरप्रीत सिंह, सरदार मनप्रीत सिंह, सरदार गुरजीत सिंह, मोहम्मद गफरान इलाही और शरून दिश्ती को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने पिस्तौल बताकर शिकायत कुनिंदा से पिल्लर नंबर 28 के पास कसीर रकम लूट ली। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से 43,80,000 रुपए नकद रकम, एक पिस्तौल और उसकी गोलियां, एक मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन्स के अलावा दूसरी अशिया जब्त की। गुडिमल कापुर पीएस लिमिट्स में 30 अगस्त को एक ऑफेंस हुआ था, तो उसमें दो लोग तो जो होंडा एक्टिवा बाइक में जैकेट्स और हेलमेट्स पहने थे, उन्होंने एक ज्वेलरी शॉप से आते हुए मैनेजर के पास जो कैश बैग है उस कैश बैग को चोरी कर लिया था, मतलब खींच के ले गए थे बाइक में। तो स्पेशल टीम्स फॉर्म करके गुडिमल कापुर पुलिस और हमारे टास्क फोर्स टीम, साउथ वेस्ट टीम, स्पेशल टीम्स फॉर्म करके उनके ट्रैक करने लगे। तो सीसी कैमरास ट्रैक करते हमें एक इम्पोर्टेंट क्लू मिला था। उस क्लू से ये आइडेंटिफाई हुआ है कि कौन ये सब कर सकता है, मतलब मेन एक्यूज्ड कौन है बोल के फोन नंबर मिला था। फोन नंबर से उसका पहचान भी हुआ, नाम भी पता चला, उसका घर भी पता चला। तो आज सुबह 8 बजे तो इंफॉर्मेशन आया था हमें कि ये एक्यूज्ड और उसके साथी उस घर में आए थे। तो इसलिए हमारे गुडिमल कापुर पुलिस और टास्क फोर्स टीम दोनों जाके उसको ऑब्जर्व करे थे उसको। तो अराउंड 8:30 8:45 उसमें से ये मेन हरप्रीत सिंह है जो जिसके नाम पर हमें क्लू मिला था कि ये हो सकता है बोल के, तो वो बाहर आया था। बाहर आने के बाद इमीडिएटली हम लोगों ने उसको पकड़े थे, हमारे टीम्स ने। आबकारी इन्फोर्समेंट पुलिस ने मिलावटी शराब की तैयारी में इस्तेमाल के लिए ले जाए जा रहे काले गुड़ को जब्त कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुसद्दिक़ इत्तला मिलने पर जरचल्ला बस स्टैंड की गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। इस दौरान अशोक लेलैंड गाड़ी से 18 किलो गुड़, 10 लीटर मिलावटी शराब और 20 किलो फिटकरी जब्त की गई। पुलिस ने सिंगारणी कॉलोनी के श्रीनिवास और रफी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन अशिया को तुलकरपल्ली ले जाया जा रहा था। श्रीरामपल्ली चौराहे के पास गाड़ी को जब्त किया गया। और नजर आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है।
अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेख पेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। हैदराबाद दुनिया के लिए फ्यूचर सिटी, मसनूई ज़हानत पर 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस। टेक्नोलॉजी इंसानी तरक्की में मुआविन, वज़ीर आला का खिताब। सैलाब से मुतासर होने वाले ज़खायर आब की मरम्मत के टेंडर्स तलब करें। नुकसानात की तफसीलात फराहम करने की वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। सरकारी तालीमी इदारों को मुफ्त बरक़ी सरबराह की जाएगी। अखराजात महकमे बरक़ी बर्दाश्त करेगा। अहकामात जारी। तेलंगाना भदादरी कोत्तगुडम में इनकाउंटर, 6 माओवादिस्ट हलाक, हथियार और गोला बारूद जब्त, 2 सिक्योरिटी मुलाजिमीन जख्मी। राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली का रैकेट बेनकाब, 4 कुंटल चावल जब्त। मिलावटी शराब के लिए इस्तेमाल होने वाला काला गुड़ पकड़ा गया, 2 अफराद गिरफ्तार। और डकैती की वारदात में मुलविस 5 अफराद गिरफ्तार, 48 लाख रुपए के मसरूका अशिया बशमूल नकद रकम जब्त। सट्टे का कारोबार करने वाली टोली बेनकाब, 8 अफराद गिरफ्तार। और नाज़रीन इसी के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।